Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing great. Dear students, a warm welcome to all of you once again in our lecture number 2 of our topic, that is work, power and energy. My dear students, in the previous discussion, in the previous lecture, we have discussed about the basic introduction of what is meant by work, energy and power. And in that lecture, we have discussed about the basic idea, what about work is, what is the concept of work. We have discussed it. And after that, in this lecture, lecture number 2, we will discuss about some important topics. Let's have a look that the topics are basics of work. We have discussed it earlier. And the second, in today's topic, we will discuss about work done by a constant force. In the previous section, in the previous discussion, we have discussed about that work is basically constant force and variable force. We have to find out the work done by constant force and work done by variable force. And in this lecture, we will discuss about constant force, work done by constant force. And after that, what is meant by nature of work? What is meant by nature of work? And in nature of work, we will discuss about what is meant by positive work, what is meant by negative work, and what is meant by zero work. And after that, some important numericals, right? And in this section, and already I have told you that we will discuss the topics. We will discuss the topic first. हम थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, पहले आसान सा डिस्कशन लेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे से सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक इन आवर फर्स्ट स्लाइड नंबर, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट फोर्स? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें, कांस्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें, कांस्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें, तो यहां पर मैं लिखूंगा कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स. तो व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट फोर्स? Constant force simply means that when constant force means when magnitude and direction, magnitude and direction, magnitude and direction, magnitude and direction of the force is fixed. Magnitude and direction of the force is fixed. जब फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स होगा, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स होगा, तब हम वर्क डन को कैसे निकालते हैं. थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि वर्क डन की जो बेसिक फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसी से हम स्टार्ट करेंगे. जब हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो हमारे पास फिक्स्ड होगी, तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे. तो राइट, इफ वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m, if we have a block of mass m and an external force F is applied, and simply a displacement S will take place like this, and a displacement S will take place, and in this scenario, in this way, how we can find out the work done? And simply you know that work done is simply force into displacement, जो हमने बहुत निचले क्लासों में 9th 8th से हम इसको करते आए हैं. ये तो मैं सिंपल से लेके अभी कॉम्प्लेक्स की ओर जाऊंगा. तो यहां हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो यहां पर जो हमारा वर्क डन होता है, that work done W is equal to Fs, यानी F डॉट एस. और ये हमारे पास F डॉट एस जो है, ये जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ए डॉट प्रोडक्ट. और जो डॉट प्रोडक्ट का इंटरप्रिटेशन है, जो डॉट प्रोडक्ट का इंटरप्रिटेशन है, दैट इज एफ एस कॉस ऑफ थीटा. और इसको हम क्या लिखेंगे? यस माय डियर, एफ एस कॉस ऑफ थीटा. और इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ मैग्नीट्यूड, S magnitude, and that is our cos of theta. This is the basic interpretation of dot product.
एंड डॉट, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है। एंड डिस्प्लेसमेंट एस जो है, इन द प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अच्छे से किया होगा, उस वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि बेसिकली जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जहां पर फोर्स लगेगा जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, उसका डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं। तो यहां आपको एक चीज क्लियर जरूर करनी है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है, दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और यहां पर मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और यहां पर आपको क्या समझ आया कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा वो पॉइंट मूव होना चाहिए, तब वर्क डन होगा, तब हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो मूव होना चाहिए। इस पर हम ढेर सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे इस पर मैं न्यूमेरिकल्स ऐसे तगड़े दिखाऊंगा कि जो आपने सपने में भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि फिर आप बोल रहे हो कि फिजिक्स मुश्किल है। नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा करना है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा करना है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि जब मैं भी किसी का लेक्चर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उतना अच्छा लेक्चर नहीं है जिससे बच्चों को न्यूमेरिकल्स आ जाए, बच्चे कॉन्सेप्ट अच्छे से करें। राइट माय डियर, तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास थीटा है, व्हाट दिस थीटा मीन? थीटा इज द एंगल बिटवीन, theta is the angle between force and displacement, angle between force and displacement। अभी इस पर और चर्चा होगी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास ये चीज है, राइट? ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये हमारे पास एफ एस कॉस थीटा हो गया। तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर हम यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, जो कि हमेशा मैं क्लासरूम के लेक्चर्स में भी एक दिल बनाता हूं, और वो दिल एक खास चीज होती है। ये दिल पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने वाला हूं। मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को, जब भी एग्जामिनेशन होगा, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर का जब भी एग्जामिनेशन होगा, तो मेरे कॉपी के दिल देखने हैं बस। उन दिल में बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, आपको पता है, उसी चीज को हम दिल रखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आजकल तो हर किसी को दिल में रखा जाता है, तो वो चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन हम ऐसे दिल बनाएंगे जो वाकई में आपकी लाइफ बना देंगे, राइट? तो यहां पर अगर हम स्लोप ले लेंगे, सर किस चीज का स्लोप लेंगे? हम लेंगे स्लोप। अगर हम स्लोप लेंगे वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो स्लोप ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, slope of work and displacement gives us force, ये बात है। और यहां पर मैंने कोट कर दी, क्या? स्लोप ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस फोर्स। वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, स्लोप ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस फोर्स। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, यहां पर इस पर आते हैं। ये मैंने यहां पर फोर्स लगाए इस वाली डायरेक्शन में, तो यहां पर इंक्लाइन, ये जो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बन रहा है, राइट? एफएस थीटा का पूरा जो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो मैं आपको बताता हूं। और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तभी हम ये फार्मूला हम लेते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर देखिए, अगर हम इसके कंपोनेंट निकालना चाहें तो यहां पर ये दो कंपोनेंट इसके होते हैं, ये एक वाला, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में दूसरा एफ का कंपोनेंट है, और जिसके साथ थीटा होता है वो होता है एफ कॉस ऑफ थीटा, और जिसके साथ नहीं होता है उसको लिखते हैं एफ साइन ऑफ थीटा। ये तो परपेंडिकुलर है, ये किसी काम का नहीं है।
अभी आगे मैं बताऊंगा, ये भी हमारे पास काम का होता है। साइन कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला नहीं, साइन का कंपोनेंट, राइट। तो ये एफ कॉस थीटा है और यही फार्मूला मैंने यहां पर लिखी, जो मैंने फार्मूला लिखी, वर्क इज इक्वल टू एस, ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एस इनटू, तो इसको क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, in the direction of displacement, in the direction of displacement, ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि हम फोर्स के कंपोनेंट निकालें। मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन पर दिया है, डिस्प्लेसमेंट का एंगल विद सम थीटा बन रहा है, तो उस टाइम हम डिस्प्लेसमेंट एस के हम कंपोनेंट्स निकालेंगे और फार्मूला वही नहीं बनेगी, एस एफ कॉस ऑफ थीटा। तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और जो कि एफ डॉट एस का हमारे पास इंटरप्रिटेशन है, राइट। ये हो गया बेसिक आइडिया। लास्ट टाइम मैंने आपको वर्क का यूनिट भी बताया है, सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस की हुई है। तो मैं एक रिमाइंडर आपको देता हूं आज के लेक्चर का, थोड़ा सा वन शॉट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है। कांस्टेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स्ड होगा, और उस टाइम हम वर्क एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट, और वो इसका इंटरप्रिटेशन है एफ एस कॉस ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट, और एस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं थीटा, राइट। तो ये मैंने यहां पर लिखा W इज इक्वल एस कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इसका मैंने बता दिया अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा लग रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप इतना, मुझे लगता है कि उतना मुश्किल है नहीं, आप लोगों ने आसानी से इसको लिया होगा। तो स्लोप ऑफ वर्क डन मैंने आपको बता दिया कि स्लोप ऑफ वर्क डिस्प्लेसमेंट जो है दैट गिव्स अस फोर्स, स्लोप ऑफ वर्क डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस फोर्स, राइट। एंड आफ्टर दैट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू डिस्कस विथ यू, शायद आपने किताबों पे लिखा नहीं हो तो, और सिली मिस्टेक्स हम कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के एग्जाम में सिली मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हमें वहां, हम उनसे भी मार खाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से भी हम वहां मार खाते हैं। लेकिन यहां पर हर एक एनसीईआरटी की लाइन पर नजर रख के मैंने ये लेक्चर्स डिजाइन किए हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेक्चर की मैंने पहले बोला, ये जो मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको मैच करके देखिए, शायद ही इतनी नॉलेज और इतना एक्सटेंशन जितना मैंने इन लेक्चर्स को दिया है, मैं हर एक कॉर्नर पे गया हूं ताकि आपको बेस्ट मिले। वर्क जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट दिल हम बनाएंगे यहां पर। सर कैसा दिल? ये तो हम बहुत बढ़िया दिल बनाएंगे। ये रहा, यहां स्पेस है और आपके हिसाब से ये मेरा दिल है, आपका दिल है, किसी का भी दिल, जिसका भी हो, दिल 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 दिल, हाँ, दिल में रखेंगे इसको। क्या हम बोलेंगे कि वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मोशन। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मोशन। थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा मेरी तरह। वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मोशन, ये है बेसिक। मैंने बोला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब इस पर सर कांस्टेंट फोर्स पर क्या इतने तगड़े न्यूमेरिकल बनेंगे? अरे आसान से न्यूमेरिकल है, लेट्स हैव अ ट्राई, लेट्स ट्राई सम न्यूमेरिकल्स, देखते हैं कितने मुश्किल है। तो ये हमारे पास जो लेक्चर नंबर, ये हमारा हो गया। तो अब हम यहां पे आ जाते हैं, ये लो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो फोर्स दिया गया है 20 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और हमें वर्क डन बताना है। चलिए बता दीजिए। तो जब भी इंक्लाइन होगा, तो मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं कि जब भी मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि जब भी कोई चीज इंक्लाइन होगी तो उसको हम कश्मीरी में दोल बोलते हैं, मेरे ख्याल से दोल। तो बशुस वनान पत येल्ति कांस चीज दोल आस, दोल मतलब क्या गो? दोल मतलब गो ना एक्स एक्सिस पे
ना वाई एक्सिस पे तह बसान यह फोर्स एक्स एक्सिस पे या वाई ना यह दोल अत दोलस वालन गोल गोल वालन गो फिजिक्स मज कंपोनेंट कड़न तिकाज यह अत पे एप्लीकेबल कहीं फार्मूला गसान दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स राइट। तो यहां पर हम फोर्स के कंपोनेंट निकालेंगे और फोर्स के कंपोनेंट अगर आप देखें तो इस वाली डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो ये जो हमारे पास एंगल थीटा होगा तो ये थीटा एंगल जो है 20 न्यूटन का फोर्स है और यहां ये भूल गया है थीटा, यहां पर मान लो कोई भी एंगल ले लो, ले 60 डिग्री का हम एंगल लेते हैं। जब हम 60 डिग्री का एंगल लेते हैं तो बताइए कि यहां की ओर जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा एफ जो है यहां की ओर होगा एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो ये बनेगा 20 कॉस ऑफ 60। ये हमारा हो गया पैरेलल कंपोनेंट, इसको पैरेलल बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर जो है ये बनेगा हमारा 20 राइट साइन ऑफ 60। और हमेशा याद रखो ये किसी का काम का नहीं है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। एंड यहां पर जो हमारे पास 5 मीटर का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इन दिस डायरेक्शन है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल हमारे पास वर्क डन की फार्मूला क्या है, तो हमारे पास वर्क डन की फार्मूला है W इज इक्वल टू F डॉट S। ये हमारे पास वर्क डन की फार्मूला है, W इज इक्वल टू F डॉट S। और इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू और इसको हम लिखते हैं F S कॉस ऑफ थीटा। ये ऐसे लिखते हैं, ये जो हमारे पास एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ कितना है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लेना पड़ेगा। फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट इन मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये 20 कॉस 60 आ जाएगा। तो यहां पर ये जो एफ कॉस 60 है, एफ कॉस 60 है तो ये बनेगा 20 कॉस 60 20 एस कितना है 5, तो 20 इंटू 5 ठीक है। और साथ में रहेगा कॉस ऑफ 60, 20 इंटू 5 और साथ में रहेगा कॉस ऑफ 60। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60 दैट इज 1/2। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20 तो 10, तो W इज इक्वल टू 50 जूल हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ये लो, ये बहुत आसान सा सवाल है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और यहां पर आंसर आ गया 50 जूल। इसी का इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इसी का इंटरप्रिटेशन देखें और इसी चीज को मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं, मेरे पास है 2 kg का ब्लॉक है, ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, ये यहां से इधर गया तो ये पहुंच गया इधर 2 kg का ब्लॉक, और यहां से डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 5 मीटर। कोई बात नहीं, फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा हमारे पास 20 ये 20 है। तो यहां की ओर जो होगा, यहां की ओर जो होगा वो होगा थीटा 60 डिग्री है, तो ये होगा 20 कॉस ऑफ 60। ये लो, तो मैंने जो वर्क डन की बेसिक फार्मूला आपको बताई है, वर्क डन की बेसिक फार्मूला W इज इक्वल टू S इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of force in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा, हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है, तो W जो होगा, S हमारे पास है 5, कंपोनेंट ऑफ फोर्स है 20 कॉस ऑफ 60। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इंटू 1/2, ये गया 10 के साथ, तो ये गया 50 जूल हमारा आंसर आ गया। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना मुश्किल है नहीं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लो जी कर लो बात, ये हमारे पास चलिए ये लो, चलो इसको मैं यहां पर, चल ये हो गया 50 जूल राइट। अब कोई मुश्किल है,
चलो क्या याद रखा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों सूरतों में हमारा आंसर सही आया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार हमेशा मैं यही बोलता हूं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों के हवाले से बात करेंगे तो आजकल हम बोलते हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ाई बहुत कम करते हैं, और हमें भी लग रहा है क्लास में जब हम जाते हैं तो बच्चों की हमारा जो हमारा अटेंशन है वो तो अगर आप देखोगे तो मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारी पेशेंस और बच्चों का अटेंशन बहुत कम हो गया है। यानी क्लासरूम के लेक्चर्स में अटेंशन ही नहीं रख पाते हैं बच्चे, उनके पास उतनी पेशेंस ही नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ, ये मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे स्टूडेंट्स से कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो ऐसे एडोलेसेंट पीरियड में है, एज में है कि उनको हमारी जो नसीहत है हम उनको बोल पाते थे उस पर वो कम अमल करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, बच्चों की कोई खता नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो मैं इसमें इन्वॉल्व पाता हूं उनके मैं पेरेंट्स को पाता हूं। तो अगर ये मेरी बात पेरेंट्स सुन रहे हैं, मेरे पास तकरीबन 300-350 का इस बार जो हमारा एनरोल था यहां पर बच्चों का, और हमेशा बार बार फेसबुक के माध्यम से भी मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों को आइए, उनको देखिए उनका एडमिशन कहां पर है, हमारे बच्चे कहां पर कोचिंग कर रहे हैं। तो आज तक मेरे पास 3 पेरेंट्स आए हैं जो वाकई अपने बच्चे का केयर करते हैं, और मुझे लगा यही सीरियस है। उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं, उनका प्रोग्रेस देख रहे हैं, उनका देख रहे हैं बच्चों के साथ उनका उठना बैठना है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मैं इसमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं पाता, बच्चों को हम रोके टोके तो यहां उतना असर नहीं करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स और डियर पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट मुझे सुन रहा है, अपने बच्चों का खुदा के वास्ते ख्याल रखिए, उनको देखिए वो कहां पर पढ़ रहे हैं, और उनके जो मोबाइल फोन हैं उन पर प्रॉपरली नजर रखिए, वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन का किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब मैं 350 बच्चों का हाल देखता हूं तो मैं सोचने लगता हूं कि हमारी जनरेशन कहां की ओर जा रही है। क्या वो पैसा मोबाइल गेमिंग पे लगाते हैं? आप अपने बच्चे को कितना पॉकेट मनी देते हैं? क्या आप उसका एनालिसिस करते हो? आपने अपने बच्चे को फीस दिया, क्या उसने डिपॉजिट किया? क्या आप कभी इसमें उनके टीचर्स को आपने कॉल की है? तो डियर पेरेंट्स, आपको मैं बोल रहा हूं, आपका जो बेसिक एसेट है ना, ये यही बच्चे हैं। आप पता नहीं कहां कहां इन्वॉल्व होते हो, आप मजदूरी करते हो, आप अपने काम से इतने इन्वॉल्व हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? उन बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, जिनका आपको पता ही नहीं है हमारे बच्चे एनरोल कहां पे है। तो पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार इनको देखिए कहां पर एडमिट है, और इनकी मोबाइल फोन पर नजर रखिए, क्योंकि ये मोबाइल फोन हमारे बच्चों को पता नहीं कहां से कहां ले जा रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के मोबाइल फोन चेक करिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बंद ही कर दीजिए, अगर आपको लगता है बंद ही कर दीजिए। जो आपका आजकल की ट्रेंड हो गई है, इससे हमारी जनरेशन पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। मेहरबानी करके मैं फिर से बोल रहा हूं, पेरेंट्स को थोड़ा वॉच रखिए अपने वार्ड्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वॉच रखिए, और डे टू डे लाइफ में एक हफ्ते में कम से कम उनके कोचिंग जाइए, उनके स्कूल जाइए, उनको देखिए क्या कर रहे हैं। और खासकर जो एक वेपन आपने इसके हाथ में दिया है, वो एक मोबाइल फोन है, उस पर प्रॉपरली नजर रखिए। पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा कहां से कहां किस दिशा में जा रहा है। चलिए हम फिर से आते हैं अपनी ओर। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास और एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि हमारे पास है, बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। तो ये देख लीजिए, फिर बोलते हो हमें खबर नहीं थी, हमें पता नहीं चल रहा, हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते। अरे है क्या चीज, इतना भी तो है। चलिए, तो हम बार बार बोल रहे हो कि सर न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल है क्या चीज, कॉन्सेप्ट तगड़ा कीजिए, फिर देखिए कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा है ना, किसी भी क्वेश्चन को हिट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कहां पर प्रॉब्लम होती, किस तरह की न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी। एक एक करके आपको सारी बुक की न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे, राइट। चलिए, ये जो हमारे पास है, बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग, एक बॉडी है हमारे पास, और ये डिस्टेंस मूव कर रही है, 10 मीटर की डिस्टेंस इसने मूव की। बढ़िया है, करने दो, अच्छी बात है, बॉडी मूव करेगी। तो ये मूव कर दिया, 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया, और अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स,
अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इफ द वर्क डन इज 25 जूल। अच्छा, वर्क डन वहीं से बता रहा है ये कि W भाई साहब 25 जूल है। हाँ जी, बढ़िया है। तो 25 जूल का वर्क डन है, तो अच्छी बात है। 25 जूल का वर्क डन वहीं से दिया है, हमें निकालना क्या है। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन में है, ये फोर्स देना यहां पर भूल गए हैं। मेरे ख्याल से फोर्स भी इसके पास होना चाहिए। तो ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन का मेरे ख्याल से फोर्स हो सकता है। तो इसको प्रॉपरली चेक करेंगे हम कि ये फोर्स जो है ये 10 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए इस पर। 2 kg फोर्स जो हमारे पास है। A body moves a distance of 10 मीटर along a stair under the action of 5 न्यूटन of force। तो ये under the action of, अंडर ये है, हाँ फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, सॉरी अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन ऑफ फोर्स। ये 5 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन ऑफ फोर्स दिया गया है। चलिए बढ़िया है। तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, वर्क कितना है 25 जूल, वर्क डन इज 20, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज, वी हैव टू फाइंड आउट द थीटो, वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा। थीटा हमें निकालना है। हाँ जी बताओ थीटा कैसा आएगा। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट नहीं 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितना आएगा थीटा। कैसे निकालोगे थीटा, बोलो बोलो जल्दी, कैसे निकालोगे थीटा। थीटा निकलेगा एफएस कॉस ऑफ थीटा, एफएस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी दिया गया है और वर्क भी दिया गया है। जल्दी से बताइए कैसे निकलेगा थीटा। तो यहां पर जो थीटा निकलेगा तो W इज इक्वल टू वो होगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा भाई, कॉस ऑफ थीटा होगा W बाय एफ एस, W बाय एफ एस। तो बोलो W, बोलो W, बोलो W। 25 दिया है ना, अरे यार 25 है, और F कितना है 10 इंटू 10 है, हाँ भाई 10 इंटू 10। तो 25 कितना आ जाएगा, तो हमारा जो W आएगा वो आएगा 25 डिवाइड बाई 100, नहीं 10 इंटू 5 है, ये फोर्स 5 है, 5 है। तो ये जो हमारे पास फोर्स है वो 5 है, ये होगा फोर्स 5 है, 5 इंटू 10। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू 25/50। हाँ जी बढ़िया है। तो ये बन गया 1/2। तो वर्क, सॉरी ये जो फिर से मैं चेक कर रहा हूं इसको, हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू, वर्क नहीं है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा होगा 25/50, 25/50। तो ये आ जाएगा 1/2। बोलो कॉस थीटा का 1/2 होता है, तो थीटा टू 60। ये आंसर आ गया हमारे पास थीटा 60। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, कोई भी आप ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, आपसे तो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स पर होगा, या तो थीटा निकालना होगा। 2-3 चीजें आपको दी गई हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात होगी। राइट, बढ़िया है। यहां कोई परेशानी है तो बता दीजिए, कमेंट करिए, आप बता सकते हैं, अच्छी बात है। इस तरह का और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट बता दीजिए। और यहां पर भी हमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मेक विद द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही चीज है, वही चीज है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर। ए फोर्स ऑफ, ये जो हमारे पास फिर से वही चीज बता दी है इसने, क्या बताता है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और 5 न्यूटन था, बस कुछ नहीं किया है। यहां से 10 न्यूटन का फोर्स है, और यहां से इफ वर्क डन इज 50 जूल, हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क जो इस पर है वो आ जाएगा 50 जूल, ये 50 जूल है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पर आ गया m मास का, ठीक है, m मास का। तो वर्क ये है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, हमें वही थीटा निकालना है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए थीटा कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए थीटा कितना आएगा, फटाफट 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 जल्दी से बता दीजिए थीटा कितना आएगा। शाबाश, जल्दी से बता दीजिए थीटा कितना आएगा, जल्दी जल्दी। सही है, कितना आ जाएगा थीटा, शाबाश। आ गया होगा आपसे, बन गया होगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से बन गया होगा ये।
बन गया होगा, ठीक है। चलिए बताइए, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, फिर से वही बात, कॉस थीटा एफ एस बाई डब्ल्यू, कॉस थीटा W बाय एफ एस 50 F10 इंटू 10 50 डिवाइड बाई 100, बोले तो 1/2, मतलब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60। ये लो 60 है कोई, हाँ ये लो 60 डिग्री। कितने आसान से सवाल हैं, ठीक है। अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी तो आगे आगे देखें होता है क्या, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। और गब्बर सिंह ये क्या कर गया, जो डर गया वो मर गया। तो हमेशा फिजिक्स का पहले से ही आप लोगों को डर लगा रहता है, तो आप कैसे एक्सेल कर पाओगे। अरे कुछ नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर कर दो, प्रैक्टिस करो। और इसीलिए जो हम मॉड्यूल्स हैं हमारे, उनकी खूब सारी ढेर सारी प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जब आपको कोई डर लगे तो हम है ना, तो हम हैं तो दम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये बेसिक से न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए। द मास ऑफ ए पार्टिकल इज 2 kg, वेरी गुड, projected as shown in 4 different ways with same speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। द मास ऑफ ए पार्टिकल, सुनिए जरूर, सुनिए ध्यान से सुनिए। द मास ऑफ ए पार्टिकल इज 2 kg, इसका 2 kg मास है। इट इज प्रोजेक्टेड एज शोन, ये जो प्रोजेक्ट किया इन 4 डिफरेंट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, देखो यहां से प्रोजेक्ट किया है, इस वाले एक डायरेक्शन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी बाय द टाइम द स्टोन फॉलोज टू ग्राउंड। ये जो स्टोन डाउन है फॉल ग्राउंड को करेगा। और आपको मैं बता दूं यहां पर एक चीज के, यहां पर मैंने आपको अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं बताया, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकलेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकलेगा, तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, वही वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। से हमने नीचे लाया हो और यहां से यहां हाइट कितनी है, वो 100 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 100 मीटर का, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसके लिए अगर हम वर्क डन निकालना चाहें, तो वर्क किसके बराबर है, वो तो वही चीज है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अरे यार इतना तो अब याद हो गया होगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से जो हमारे पास फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू एम जी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, F इज इक्वल टू एम जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो नीचे फोर्स लगेगा एम जी, एम ए, फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए, और यहां ए के बदले क्या है, जी, तो ये बनेगा एम जी। तो 2 है मल्टीप्लाइड बाई 10 है, तो ये होगा 2 इंटू 10, तो यहां से आ जाएगा 20 न्यूटन का हमारे पास फोर्स आ जाएगा। अब तो आसान बात होगी, तो ये बनेगा W इज इक्वल टू 20, और हमारे पास हाइट कितनी है 100, तो कॉस ऑफ थीटा दोनों के दरमियान एंगल 0 है, तो ये 1 बनेगा। तो W इज इक्वल टू 200, और ये बन गया 1, तो W इज इक्वल टू 200 जूल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 200 जूल हमारे पास आंसर है। बहुत सा आसान है। तो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है ये सवाल, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट, मैंने एक कॉन्सेप्ट सिंपल एफ एस कॉस थीटा पर हमने इतने सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल किए हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बस शुरू का खेल है, अभी आगे देखो होता है क्या। तो इसके बाद में ये जो न्यूमेरिकल्स, यहां पर आपको कॉस थीटा मालूम करना पड़ेगा, आपको वर्क पता करना पड़ेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता करना पड़ेगा। बस ये उधर इधर के क्वेश्चन दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई खास बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, और इसको हम नेचर ऑफ द वर्क बोलते हैं। ये जो हमारे पास है नेचर ऑफ वर्क, यानी कब हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क है, नेचर ऑफ वर्क, कब हमारे पास पॉजिटिव वर्क होगा, कब हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा, और ये क्या बताता है, ये पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये क्या बताता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, और फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला सिंपली है, हमारे पास फार्मूला है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो सिंपल
फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जब भी अभी तक पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क, अब हम सिंपल खेल बताएंगे आपको। ये अभी तक हम क्या कर चुके हैं, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है और इस पर हमने इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाया। आपको मैं बता दूं, जो हमारे पास ये जो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप थीटा बोलते हो, और ये जो हमारे पास थीटा है, तो यहां से ये बन गया हमारे पास f cos ऑफ थीटा, और यहां डिस्प्लेसमेंट है। अभी मैंने आपको ये चीज बताई। तो हमारे पास अगर देखा जाए वर्क पॉजिटिव कब होगा, यानी W का वैल्यू प्लस कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्क की अगर बात की जाए, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क की जो बात की जाए, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। मैथमेटिकली आपको पता है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 से कम तक, 0 से लेकर 9, यानी इसी को हम मैथमेटिक्स में एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट मींस व्हाट, इट इज लेस देन 90 डिग्री। और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा, तब हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। जब कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास जब फॉर्मूला जो है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव आ जाएगी। ये लो, ये हो गया पॉजिटिव वर्क, ये हो गया पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हमारा थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी 0 से लेकर लेस देन 90 तक, 89 तक, 90 तक, 90 से कम जब आ जाएगा, हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। अच्छा, इस पॉजिटिव वर्क के केस में क्या होता है, इस पॉजिटिव वर्क के केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल जब क्या होगा, पॉजिटिव वर्क में, तो पॉजिटिव आ जाएगा। जब वर्क पॉजिटिव होगा, तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। पॉजिटिव वर्क में, पॉजिटिव वर्क की अगर बात की जाए, अगर पॉजिटिव वर्क की बात की जाए, वर्क इज पॉजिटिव मीन्स व्हाट, वर्क इज पॉजिटिव मीन्स व्हाट, यानी फोर्स, फोर्स जो है, फोर्स विल सप्लाई, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम। फोर्स विल सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम, या ऐसे नहीं लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स, सिंपल भाषा में मैं लिखूं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, applied force, applied force favors the motion, applied force favors the motion of the body, favors the motion of the body। अप्लाइड फोर्स फेवर्स द मोशन, ये सपोर्ट करते हैं मोशन को, अप्लाइड फोर्स सपोर्ट करता है मोशन को, या हम ऐसे बोल सकते हैं फोर्स विल सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम, ऐसा भी लिख सकते हैं। फोर्स विल सप्लाई, फोर्स विल सप्लाई एनर्जी, फोर्स विल सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम, सप्लाई एनर्जी to the system, energy to the system। ये लो, फोर्स विल सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, वर्क को हम पॉजिटिव, नेचर ऑफ द वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा का वैल्यू, जो मैथमेटिकली हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अब हम एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब थीटा होगा, जब थीटा होगा क्या, ग्रेटर और इक्वल टू 90, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 0,
ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90। ये लो, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा किसका, ये वैल्यू आपको याद रखना है। क्या वैल्यू आपको याद रखना है, जब हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कितना, थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास थीटा का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 और होना चाहिए लेस देन 90। मैंने सोचा था मैं दिल बनाऊं, लेकिन यहां पर हमें दिल मिलता नहीं है, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 90, तब हमारा जो नेचर ऑफ द वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपसे फिर से मैं शेयर करना चाहता, है तो आसानी है, तो यहां पर है तो आसानी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैक्सिमम वर्क की हम बात करेंगे। अब हम कब बोलेंगे वर्क कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क कब होगा, एक इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम वर्क कब होगा, यानी हम कब बोलेंगे हमारे पास वर्क मैक्सिमम है, हम कब बोलेंगे हमारे पास वर्क मैक्सिमम है, हम कब बोलेंगे हमारे पास वर्क क्या है, मैक्सिमम वर्क है, हम कब बोलेंगे हमारे पास वर्क क्या है, मैक्सिमम वर्क हमारे पास कब होगी। हमारे पास कब मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। मैक्सिमम वर्क कब होगा हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, जब हमारे पास ये जो मास m का ब्लॉक है, ये जो हमारे पास मास m का ब्लॉक है, मास m का ब्लॉक जो हमारे पास है, ये हमारे पास मास m का ब्लॉक है, ये m मास का ब्लॉक है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तब हमारे पास जो थीटा का वैल्यू होगा वो होना चाहिए 0। यानी थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो अब हमारे पास, ध्यान से देखिए, cos 0 कितना होगा, वो होगा +1। और थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, -1 से +1 तक। तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, तो हम W को क्या लिखें, वर्क को यहां क्या लिखें, मतलब वर्क क्या लिखेगा, W इज इक्वल टू FS cos ऑफ 0, cos 0 क्या है 1, W इज इक्वल टू, तो यहां पर लिखना चाहूंगा मैं प्लस, और यहां पर लिखना चाहूंगा मैं प्लस FS, ये बन गया मैक्सिमम वर्क। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, यानी वर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा +FS। और ये कब पॉसिबल है, ये +FS कब पॉसिबल है, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0, और इसमें हमारे पास मैक्सिमम वर्क होगा। यानी मैक्सिमम वर्क कब होगा, तब होगा जब हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा, 0 होगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वर्क। और ये मैक्सिमम वर्क होगा तो पॉजिटिव वर्क में, तो पॉजिटिव वर्क में, पॉजिटिव वर्क में, पॉजिटिव वर्क की अगर बात की जाए, पॉजिटिव वर्क की अगर बात की जाए, पॉजिटिव वर्क की अगर बात की जाए, इसमें हमारे पास जो स्पीड होती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इट फेवर्स द मोशन, इट फेवर्स द मोशन, इसीलिए मैंने बोला स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट फेवर्स द मोशन, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब पॉजिटिव वर्क होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन होंगे, तो थीटा जो है लेस देन 90 होगा और ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, तब उस समय हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी बॉडी की, और खासकर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे, अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि पॉजिटिव वर्क कब बनेगा। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि पॉजिटिव वर्क कब होगा। मान लो ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्लॉक है, मास m का ब्लॉक है, मास m का ब्लॉक है, और इसको हमने रस्सी, जो यहां से एक रस्सी से हमने इसको एक रस्सी से उठाने की कोशिश की है, एक रस्सी से हमने इसको उठाने की कोशिश की है ऐसे,
ठीक है, ये हमने इसको रस्सी से उठाने की कोशिश की है और इस रस्सी में टेंशन आ जाता है, जैसे आप जानते हो ये इस रस्सी में टेंशन आ जाएगा और वो टेंशन इस वाली डायरेक्शन में होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? अगर आप देखोगे इसका डिस्प्लेसमेंट भी एस जो है वो भी ऊपर हो रहा है और टेंशन भी ऊपर है, और टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, टेंशन वाला फोर्स इज पैरेलल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, और पैरेलल वाला कंपोनेंट ही हमारे काम का होता है। तो यहां पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऊपर है, सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, तो ये बनेगा हमारे पास पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। और निकालने के लिए वही फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास सीधा सीधा निकलेगा, क्योंकि यहां पर थीटा क्या है? थीटा हमारे पास 0 होगा, W इज इक्वल टू एफ एस। तो ये मैक्सिमम वर्क निकलेगा, W इज इक्वल टू एफ एस। ये मैंने आपको पॉजिटिव वर्क की कहानी बताई। न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे तो खूब मजा आ जाएंगे, और इस तरह का मजा आ जाएगा जब मिल बैठेंगे आप, मैं और हमारी फिजिक्स की दुनिया। तब आप देखोगे कि इसमें कितना मजा आया, कितना मजा आ रहा है। अभी तक जो मैंने आपको बोला, मुझे नहीं लगता उसमें कोई मुश्किल वाली बात है। पहले आसान बेसिक क्लियर करना है, धीरे 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 करके हमें कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। यानी हम बेसिक लेवल से, नीट लेवल से, IIT की लेवल तक भी जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उसके लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, हमारी ऐप में, हमारी YouTube चैनल पर, हमारे लेक्चर्स के साथ। ये लेक्चर नंबर 2 है, और आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट लेक्चर आ जाएंगे तो उससे तगड़े हो जाएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से अभी तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहां तक। तो नेक्स्ट ये पॉजिटिव वर्क हो गया। पॉजिटिव वर्क फेवर करता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई ऐसा तीसमार खान नहीं है जो आपको फिजिक्स समझाएगा। फिजिक्स समझना आसान है, लेकिन अब आप बोलोगे हमें लेक्चर देख के सारी फिजिक्स आएगी, ये तो कोई भी लाओ, किसी को भी लाओ, किसी भी तीसमार खान को लाओ, कोई नहीं आपको ये बोलेगा कि मुझसे पढ़ोगे तो आपको 100% फिजिक्स आएगी। आपको कब आएगी? जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत बच्चे बार बार हमें यही पूछते हैं क्लासरूम के लेक्चर्स में, सर ये फिजिक्स, हम तो यहाँ कोचिंग करने आए थे, MBBS की, डॉक्टरी की कोचिंग करने आए थे हम, लेकिन हमें ये समझ में आता अब जो ये वर्क वगैरह, हमें पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, चार्ज, ये चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपनी तो हमारा दिमाग पक गया इन चीजों से, कहां लगता है। चलो जूलॉजी कितनी आसान है, वहां हम ब्लड देखते हैं, ब्लड पढ़ते हैं, वहां हम दूसरी तरह की चीजें पढ़ते हैं जो मुझे लगता है नहीं ये डॉक्टरी के साथ रिलेटेड है। तो ये कहां आता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर खाली जूलॉजी और बॉटनी को पढ़ा जाए और MBBS की, तो लाइन लग जाएंगे, सारे MBBS को क्रैक करेंगे उतना। तो MBBS को क्रैक करना, नीट को क्रैक करना फिजिक्स डिसाइड करता है, आपकी जूलॉजी और बॉटनी डिसाइड नहीं करती। फिजिक्स में आपका स्कोर 70 में से कितना स्कोर आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट, ये फिजिक्स तय करता है। और मैंने उस स्टूडेंट को बोला कोई बात नहीं, आपको पता है फिजिक्स क्यों पढ़ी जाती है? ताकि आप जैसे बेवकूफ वहां सिलेक्ट ना हो, आप जैसे तुझे मुंड दिमाग वाले मग असन सिलेक्ट है मुंडो दिमागो तुंदे खतरा आम फिजिक्स थावने कि तुम वो तुम कूत कर पिकअप फिजिक्स में यो दिमाग चेक करान तुम कूत दिमाग छो। अगर नहीं तो समझ आव ये, अगर नहीं तो ये चीज समझ आव, फिजिक्स अवै थवान ताकि वो तोड़ गन कम लायक। अगर वन फिजिक्स वरई थवह वारकार क्या MBBS थवह फिजिक्स वरई, नीट वरई, तेल पई, तेल बनो तुम तिमे डॉक्टर, सर्जरी कर रोजू तुम कैंची अंदर, सपे पे नई कर सर्जरी, यह फिजिक्स पढ़मुत सु कर तथ कैंची पे नेबर, तुम पे थवान कैंची अंदर कनी, तो तिम डॉक्टर गई तिमे यम फिजिक्स वरई गसन, यम नीट क्रैक करने वरई गसन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खुल जाता है, आपका दिमाग खुल जाता है पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स की प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। आपको हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा, तो आपको फिजिक्स आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्लास है, अब इसी का और एक पार्ट है, नेगेटिव वर्क भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क भी उतना मुश्किल नहीं है, आसान सा चीज है। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। चलिए, नेगेटिव वर्क के केस में जब वही हम बॉडी लेंगे, एक बॉडी हमारे पास है, उस बॉडी का मास है m, उस बॉडी का मास है m,
और इस तरह अगर फोर्स लगेगा इस वाली डायरेक्शन में, अगर हमारे पास फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, और यहां पर देखिए जब नेगेटिव वर्क तब आएगा जब हमारा एंगल जो है, जो थीटा है, वो थीटा होना चाहिए ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। जब थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो जब हमारे पास थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो उस एंगल को मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। यस माय डियर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहां से मैं लिखूंगा अभी, ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। तो जब थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से, अभी मैंने बोला लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, और बीच वाला बहुत स्पेशल केस है जब ये 90 डिग्री पर आए, इसके बाद बताता हूं। जब ये 90 डिग्री होगा तब हमारा जीरो वर्क आ जाता है, लेकिन मैंने इसको फिलहाल क्योंकि इस पर मुझे इतनी सारी ढेर सारी चर्चा करनी है, क्योंकि उस पर ही कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम वहां पर भी सिली मिस्टेक्स करके उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहां पर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। राइट बच्चा? तो हम आगे चलें, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तब हमारा जो थीटा का वैल्यू होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। जब हमारा थीटा वो आ जाएगा नेगेटिव, और जब ये हमारे पास जब थीटा नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास W का जो फार्मूला है वो क्या है बच्चा? Fs cos ऑफ थीटो। और जब cos ऑफ थीटा ही नेगेटिव आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू, और इसका बनेगा नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस Fs। ये बन गया वर्क माइनस Fs, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास, जो हमारे पास नेगेटिव वर्क आ जाएगा। अच्छा, जब नेगेटिव वर्क होगा तो क्या होगा? जब वर्क नेगेटिव होगा तब जो हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की हो रहा है और इधर लग रहा है, तो ये हमारे मोशन ऑफ द बॉडी की मोशन को अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा? पॉजिटिव वर्क में तो सपोर्ट कर रहा था, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। पॉजिटिव वर्क में सपोर्ट कर रहा था, मुझे लग रहा है आपका दिमाग बैठ गया अब। अच्छा, पॉजिटिव वर्क में क्या हो रहा था? सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? पॉजिटिव वर्क में जब सपोर्ट हो रहा था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है इन सेम डायरेक्शन होते थे, लेकिन यहां पर अपोजिट में है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि अप्लाइड फोर्स अपोजेस द मोशन। तो ये इंपॉर्टेंट के साथ फोर्स अपोजेस द मोशन, यहां लिखूंगा मैं अप्लाइड फोर्स opposes the motion. Applied force opposes the motion. और वहां पर हमने क्या लिखा था? अगर आपको याद होगा, मैं आपको वापस लेके चलता हूं। वहां पर हमने क्या लिखा था? वहां पर लिखा था अप्लाइड फोर्स फेवर द मोशन ऑफ द बॉडी, फोर्स विल सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम। दोनों अपोजिट में चलेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क में दोनों क्या चलेंगे? अपोजिट में चलेंगे। फोर्स अपोजेस द मोशन, और जब इस तरह का खेल होगा तो हम क्या रखेंगे दिल में? मैंने बार बार बोला है, दिल बना के जाइए, और उस दिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम लिखने वाले हैं। इस दिल में क्या लिखने वाले हैं? तो सुनो, इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड जो है वो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट मींस एनर्जी विल बी एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम बाय द फोर्स। एनर्जी विल बी एब्स्ट्रैक्ट
energy will be abstract. Energy will be abstract from the system by the force. From the system by the force. From the system by the force. ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो अब देखिए, कभी कभी हमें पूछा जाता है मिनिमम वर्क के बारे में। मिनिमम वर्क के बारे में पूछा है, मिनिमम वर्क यानी वर्क कब मिनिमम होगी, मिनिमम वर्क के बारे में पूछा जाता है। मिनिमम वर्क कब मिनिमम होगी, मिनिमम, मैक्सिमम नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं। तो आपको मिनिमम में कंफ्यूज ना हो तो ये मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, ये मैक्सिमम नेगेटिव है। मैक्सिमम नेगेटिव कब होगी वर्क, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा, ध्यान से देखिए, जब हमारे पास फोर्स, ये फोर्स है, ठीक है, और यहां से इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट इधर या फोर्स इधर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट में है, हाँ अपोजिट में है। जब थीटा होगा बराबर है, जब थीटा होगा ये थीटा ऐसे बराबर थीटा 180 डिग्री। अब देखिए दोनों अपोजिट में है, तो आपको बताना पड़ेगा कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, -1। यानी -1 मींस मैक्सिमम वैल्यू जो थीटा का होगा माइनस वो कॉस ऑफ 180 डिग्री पर हो जाएगा। और हमारे पास फार्मूला की अगर बात की जाए तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ थीटा 180, तो W इज इक्वल टू -FS, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम नेगेटिव का वैल्यू है। W इज इक्वल टू -FS, ये मैक्सिमम नेगेटिव है, यानी ये मैक्सिमम नेगेटिव है जब थीटा होगा 180 डिग्री होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वर्क नेगेटिव आ जाएगी। और इसी केस में हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जो मैंने उस केस में भी बताया था, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी हमारी डिक्रीज हो जाती है, यानी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज आती है, ठीक है। ये है नेगेटिव वर्क। तो अगर आपको मैक्सिमम नेगेटिव यानी मिनिमम वर्क कब मिनिमम होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, यानी नेगेटिव का मैक्सिमम नेगेटिव होगा 180 डिग्री पर, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा 0 डिग्री पर, 0 पर मैक्सिमम पॉजिटिव, 0 पर मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और 180 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू, -FS एंड +FS। अब इसके बाद में अगर हमें इसके छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, छोटी सी चीज जो हमारे पास है, ये छोटी सी चीज है, देखता हूं मैं ये स्लाइड अगर इसमें होगा तो मैं चेक करता हूं, स्लाइड इसमें होगा। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये लो, ये वर्क डन निकालना है। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, वर्क एफ एक्सटर्नल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए आप, अगर यहां पर हमारे पास एफ एक्सटर्नल यानी इस पर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और यहां जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है, आ जाओ, मास 2 kg है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो दोनों के दरमियान अगर मैं यहां लिखना चाहूं एफ एक्सटर्नल जो है, एफ एक्सटर्नल पास कितना है, 10 न्यूटन। आ जाओ भाई आ जाओ, 10 न्यूटन, एफ एक्सटर्नल 10 न्यूटन है। हमारे पास वर्क की जो फार्मूला है वो है एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अगर यहां थीटा को देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा W एक्सटर्नल वो हो जाएगा एफ हमारे पास 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और थीटा है cos 0 1, तो W एक्सटर्नल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 जूल। ये लो, ये एक्सटर्नल फोर्स, सिंपल, इसमें कोई बात ही नहीं है, सिंपल चीज है ये।
अब ये बताता है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन, अगर बॉडी मूव इधर हो रही है तो मुझे बताइए फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में, फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा। अब अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स जो है, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स F फ्रिक्शन यहां नहीं दिया है तो मान लो ये 4 न्यूटन है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कितना है, 4 न्यूटन अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है तो बता दीजिए आप फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन बताइए। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। अब पहले बोलिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जल्दी वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल कितना है, अपोजिट है। यहां पर मैक्सिमम नेगेटिव आएगा क्योंकि ये 180 डिग्री पर है। यहां पर अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स F फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, W इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा, FS cos ऑफ थीटा, W इज इक्वल FS cos ऑफ थीटा, W इज इक्वल F कितना है हमारे पास 4, S कितना है 10 और cos थीटा है जो हमारे पास है 180 डिग्री, दैट इज -1, तो ये -1। ठीक है, FS cos ऑफ थीटा, तो ये बनेगा, तो W इज इक्वल टू -40 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव वर्क में हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ने 100 जूल किया और W जो है, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो 4 जूल के बराबर होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है जूल के बराबर होगा। तो यहां तक मैंने आपको पॉजिटिव वर्क बताया, नेगेटिव वर्क बताया, पॉजिटिव वर्क बताया, नेगेटिव वर्क बताया, तो ये आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जीरो वर्क बताता हूं, जीरो वर्क डन बताता हूं। तो ये थोड़ी सी और एक इंपॉर्टेंट होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप मुझे बता देना कि इसका आंसर आपको आएगा कि नहीं आएगा। होम असाइनमेंट में ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड, वर्क डन बाय, अगर हम क्या बोलता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमने फोर्स को भी डबल किया है, फोर्स को डबल, और साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट को भी डबल किया है। आपको बताना है वर्क डन डबल 4 टाइम्स होगा, हाफ होगा या 1/4 होगा, आपको बताना है। तो ये आपका काम है अगर दोनों डबल हो जाएंगे तो। और एक चीज है, ए मैन पुशेस ए वॉल, एक मैन है, हट्टा कट्टा आदमी है, हट्टा कट्टा आदमी है यहां पर, और ये जो है मैं कोशिश करता हूं, ये जो है हट्टा कट्टा है, ये इस वॉल को धक्का दे रहा है। ठीक है, इस वॉल को धक्का दे रहा है, लेकिन मूव ही डज, ए मैन पुशेस ए, फेल्स टू मूव, फेल्स टू मूव, फेल्स टू मूव, नहीं मूव कर पाया, फेल्स टू मूव। तो बताइए वर्क डन हुआ कि नहीं होगा, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। तो ये आपका असाइनमेंट है, मुझे जरूर बता दीजिए इसका आंसर इन 4 में कौन होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा या जीरो वर्क होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क होगा या जीरो वर्क होगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन। आप लोगों ने इतना मेरे साथ बने रहे आप, और आपने टेस्ट किया, मैंने आपको एक फ्लेवर, एक टेस्ट बेसिक फिजिक्स का। अभी और लेक्चर्स आने वाले हैं और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, साथ साथ में शीट्स भी मिलेंगी, कहां से हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप मजे लीजिए, फिजिक्स कितनी आसान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए कि फिजिक्स कितनी आसान है, नहीं है हम बना देंगे आसान। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।